तो आज का चैप्टर है सेल और ये है चैप्टर 8। इसको करते हैं। इस वीडियो में पहले बता दूं कि बस रीडिंग होने वाली है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली है, सिर्फ रीडिंग है रिवीजन के लिए। और ऑब्वियसली रोबोट की तरह सब सिर्फ रीड नहीं करूँगा, बीच बीच में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे उसको थोड़ा सा एक दो बार रिपीट करूँगा ताकि दिमाग में ठीक से घुस जाए। ठीक है, तो बस शुरू करते हैं। When you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have, which a living thing has? The answer to this is the presence of a basic unit of life. What is the basic unit? The cell. In all living organism, हर एक living organism में होता है cell. All organisms are composed of cells. Some are composed of a single cell, are called unicellular organisms. ठीक है, while the others like us composed of many cells and are called multicellular organism. What is a cell? Question mark. 8.1. Unicellular organisms are capable of first, independent existence, and second, performing the essential functions of life. ठीक है, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. एंटोन वॉन लिवेनहुक याद रखना है। एंटोन वॉन लिवेनहुक फर्स्ट सॉ, सबसे पहले देखा और डिस्क्राइब किया एक लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था कॉर्क में। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। The invention of a microscope and its improvement leading to electron microscope revealed all the structural detail of the cell. 8.2 Cell theory. In 1838, Matthias Sackledin, a German botanist, याद रखना है 1838 में कौन? Matthias Sackledin, a German botanist, examined a large number of plants, botanist था obviously, and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plants. At about the same time, एक और आए, Theodor Sackmann, 1839, and what did he said? He was a British zoologist. What he was? He was a British zoologist. ठीक है, Sackmann was a British zoologist and he studied different types of animal cells and reported that cells had a thin outer layer which is today known as plasma membrane. He also concluded, based on his studies on the plant tissue, that the presence of a cell wall is the unique कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। ये इन्होंने बोला, ठीक है, बॉटनिस्ट ने नहीं, अपने शैकवान ने बोला, ठीक है, ना कि सैकलेड ने। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, शैकवान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cell. Sackledin and Shakwan together formulated the cell theory. And the theory, however, did not explain as to how the new cells were formed. ये चीज़ नहीं बता रही थी थ्योरी, ठीक है, जब इन दोनों ने बनाई थी। फिर आए अपने विर्को, रॉडोल्फ विर्को, 1855, ये तो याद ही रख लेना, ठीक है, अलग से 1855. He first explained that the cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells, जिसे कह देते हैं हम omnicellular इनकी भाषा में. He modified the hypothesis of the Shackleton and Shakman to give the cell theory a final shape. किसने दिया cell theory को? रॉडल्फ. इतना easy तो नहीं पूछेगा. Cell theory as understood today is all living organisms are composed of cell and products of cell. All cells arise from the pre-existing cells. An overview of cell. You have earlier observed cell is a cell in an onion peel and or human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane. The cells of the human cheek have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside
inside each cell is a dense membrane bond structure called a nucleus. ठीक है. This nucleus contains the chromosomes, which in turn contain the genetic material, which is DNA. Cells that have membrane bond nuclei are called eukaryotic, whereas the cell that lack nuclei are that lack membrane bond nucleus. ठीक है, membrane bond nucleus, बेसिकली membrane नहीं होती भाई न्यूक्लियस की, आर प्रोकैरियोटिक है. ये बेसिक डेफिनेशन है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में. इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म तो दोनों में होता है और एक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल. The cytoplasm is the main arena. This is an important line. Cytoplasm is the main arena of the cellular activities in both plant and in both the plant and animal cells. ठीक है. Various chemical reactions occur in it to keep the cell in the living state. Besides the nucleus, the eukaryotic cells have the other membrane bond distinct structures called organelles like ER, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuoles. In prokaryotes, they lack such membrane bond organelles. Okay, they don't have that. Ribosomes are non-membrane bond organelle. याद रखना कि राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती. राइबोसोम्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है. दीज आर फाउंड इन ऑल सेल्स. दोनों ही सेल्स मिलते हैं, बोथ कैरियोटिक and as well as prokaryotic, both. Within the cells, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles. कौन से? Chloroplast and mitochondria. और रफ ईआर के ऊपर भी मिलते हैं. फिर से बोल रहा हूं, राइबोसोम्स आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म बट ऑल्सो विथ इन द टू ऑर्गेनेल्स. कौन से? क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया. एंड ऑन rough ER. Animal cells contain another non-membrane bond organelle called as centrosome. तो दो भाई non-membrane bond organelle बताया मैंने. राइबोसोम हो गया अपना और दूसरा क्या हो गया? सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीजन में जिसका रोल होता है. बट तुम्हें यह भी याद रखना है कि जो राइबोसोम है वो दो ऑर्गेनेल जिसमें पाया जाता है. कौन से? क्लोरोप्लास्ट, जो कि प्लांट में होता है, फोटोसिंथेसिस करता है. ठीक है. और एनिमल्स में अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और रफ ईआर के ऊपर पाया जाता है. ठीक है, रफ ईआर के ऊपर ऑन लिखा है. ठीक है, ऑन द रफ ईआर. ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए बोल सकता है इनसाइड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड रफ ईआर, तो नहीं, ऑन रफ ईआर. सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, माइकोप्लाज्मा, द स्मॉलेस्ट सेल, आर ओनली 0.3 micrometer in length, while the bacteria could be 3 to 5 micrometer. The largest isolated single cell is the egg of an ostrich. Among multicellular organisms, human RBC are about 7 micrometer in diameter. Nerve cell are some of the longest cells. लंबे से होते हैं. Cells also vary greatly in their shape, डिपेंडिंग अपॉन जो भी फंक्शन करते हैं. राइट, अब नर्व इम्पल्स पूरी बॉडी में पहुंचाना है तो लंबे बनाए उनको, है ना. दे मे बी डिस्क लाइक, दे मे बी अ पॉलीगन, दे मे बी कॉलमनार, दे मे बी क्यूबॉइडल, दे मे बी थ्रेड लाइक, दे मे इवन इरेगुलर. द शेप ऑफ द सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. ये याद रखना, द शेप मे वेरी विद द फंक्शन. उनके फंक्शन पे डिपेंड करता है वो किस टाइप का शेप रखेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करते हैं. तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ल्यूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. Important line. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. They may vary greatly in the shape and size. The four basic shapes of bacteria are वैसे तो bacillus, कोकस स्पेरिकल शेप होता है, विब्रियो कॉमा शेप्ड होता है, स्पिरिलम स्पाइरल शेप्ड होता है. The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar, even though prokaryotic exhibit a wide variety of shapes and function. All prokaryotes have
अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, और प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है. एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को छोड़ के भैया सबके पास होता है प्रोकैरियोट्स के पास सेल वॉल. द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म. देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ठीक है. जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, ऐसे ही बस पड़ा रहता है सेल में, नॉट एनवलप्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. In addition to the genomic DNA, the single chromosome / circular DNA, many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called the plasmids. याद रखना important है. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters. Phenotypic मतलब जो physically दिखे, right? फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया, कुछ ऐसे कैरेक्टर देता है जो उनके जीनोमिक डीएनए नहीं देता, एक स्पेशल कैरेक्टर देता है ना, जैसे इनकी स्पेशल एबिलिटीज कह दो. वन सच कैरेक्टर इज द रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक. खाई तो हमने एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया मरा ही नहीं भैया. प्लाज्मिड डीएनए था उसके पास, रेजिस्टेंट था उसके पास, रेजिस्टेंस शो कर रहा था उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से जो हमने खाई. In higher classes, you will learn that these plasmid DNA is used to monitor the bacterial transformation with the foreign DNA. ये मैं अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन वाला वीडियो है भी नहीं है, ठीक है. नहीं तो मजा आता है इसे एक्सप्लेन करने में, क्लास 12th में डिटेल में. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर नहीं समझ आता कोई बात नहीं, अगर आप 11th हो. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स, ठीक है. No organelle like the one in the eukaryotes are found in the prokaryote cell except ribosomes. फिर से बोल रहा हूँ, nuclear membrane is found in eukaryote, but no organelle like the ones in eukaryotes are found in the prokaryotes except for the ribosome. बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बन सकता है इससे, ठीक है. What is the common organelle in prokaryote and eukaryote? Ribosome, ठीक है, simple. Prokaryotes have something unique in the form of inclusions, ठीक है. द स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, मीजोजोम, ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है. मीजोजोम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट. इट्स द कैरेक्टरिस्टिक, मतलब मीजोजोम में तुम कह देंगे भैया यार तुम प्रोकैरियोट लग रहे हो, है ना. दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, बट इनके भी थोड़े बहुत फंक्शंस होते हैं. सेल डिवीजन, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. वैसे रेस्पिरेशन में फंक्शन होता है मीजोजोम का, उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तो होता नहीं. सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, ठीक है. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of tightly bond three-layered structure. That is the outermost glycocalyx. अब मैं मेरी pronunciation पे मत जाओ. Followed by the cell wall and then the plasma membrane, ठीक है. ग्लाइकोकैलेक्स ही बोलेंगे वैसे. फिर पहले तो ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, फिर है अपना सेल वॉल, ठीक है, फिर है सेल मेम्ब्रेन. तो 3 लेयर. अब देखो, although each layer of the envelope perform the distinct function, they act together as a single protective unit, ठीक है. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to staining procedure developed by gram staining जिसे कहते हैं. वीडियो अपलोडेड है, डिटेल में जानना है जान सकते हो. Those that take up the gram stain are gram positive bacteria and those that do not are gram negative bacteria. Glycocalyx differs in composition and thickness. बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से. Glycocalyx differs in composition and thickness among the different bacteria. It could be a loose sheet, ठीक है, लूज शीट हो सकता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे भैया, हम बोलेंगे स्लाइम लेयर. While in others it may be thick and tough, तब क्या बोलेंगे भैया, कैप्सूल. Cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting. अब ध्यान से सुनना, सेल वॉल है जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है. स्ट्रक्चरल सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है भैया, सेल वॉल, कोई कैप्सूल नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है. ग्लाइकोकैलेक्स का इसमें कोई रोल नहीं है. सेल वॉल यहाँ पे उसका शेप डिटरमाइन कर रही है, सेल वॉल ही स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और वो बैक्टीरिया को बर्स्टिंग या कोलैप्सिंग से कौन प्रिवेंट कर रहा है, सेल वॉल प्रिवेंट कर रही है. यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है, ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ना ग्लाइकोकैलेक्स का. इस बात को अपने दिमाग में भेजे में अच्छे से घुसा लो, ठीक है.
द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कुछ चीजों को आने देगी, कुछ चीजों को नहीं आने देगी, जो सेल के लिए यूजफुल है आओ आओ आओ, जो घटिया है जाओ जाओ जाओ, जिससे कोई मतलब नहीं भाड़ में जाओ, ठीक है। सेलेक्टिवली परमेबल होती है एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। फिर से बोल रहा हूं, दिस मेम्ब्रेन, विच मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, is selectively permeable in nature and interacts with the outside world. This membrane is similar structurally to that of the eukaryotes. फिर से बोल रहा हूँ, this membrane is structurally similar to that of the eukaryotes. ठीक है, ऐसे रीजन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, कुछ भी घुमा सकता है, बोल देगा भाई नहीं है सिमिलर, बोल देगा द मेम्ब्रेन है ना स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं होती प्रोकैरियोट यूकैरियोट की, समझ रहे हो ना, तो ट्रू फॉल्स में फंसा सकता है ना, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, 2 या 3 या 4, तो उसमें फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, ठीक है, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है। ओके, अ स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज द मीसोसोम विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे भी घुमा देगा, एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल कर देगा, एक्सटेंशन ऑफ ग्लाइकोकैलेक्स कर देगा, याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से ही बनता है मीसोसोम इनटू द सेल। दीज एक्सटेंशंस आर in the form of vesicle, it could be tubule, it could be lamella, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। they help in cell wall formation, they help in what, they help in cell wall formation, पहला, ठीक है, याद रखना पहला। they help in DNA replication, दूसरा, and distribution of the daughter cells, तीसरा। they also help in respiration, चौथा, secretion, पांचवा, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, छठवा, ठीक है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, ठीक है। अब याद रखना चाहिए, ठीक है, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल्स, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन प्रोसेसेस, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। In some prokaryotes, like the cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm. याद रखना, अपने जो कुछ बैक्टीरिया हैं जिसकी पर्टिकुलरली यहाँ पे बात हो रही है साइनोबैक्टीरिया की, मतलब इसमें भी होता है, इनके पास एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है मेसोसोम के अलावा, जिसे कहते हैं ये हम क्रोमैटोफोर्स, विच कंटेन्स पिगमेंट्स, बस याद रखना, ठीक। बैक्टीरियल सेल्स मे बी मोटाइल, may be non-motile. If motile, they have a thin filamentous extension from their cell wall called flagella. अगर भैया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजेला होगा। फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है सेल वॉल से, कहाँ से, सेल वॉल से, फ्रॉम देयर सेल वॉल, फ्रॉम देयर सेल वॉल्स, फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacterium flagellum is composed of 3 parts: filament, hook, basal body. The filament is the longest portion and extends from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae. Pili and fimbriae are also surface structures of the bacteria but do not play a role in motility, sorry, ठीक है, याद रखना फ्लैजेला, बिसाइड्स फ्लैजेला, पिलाय और फिम्ब्रिया भी होते हैं, बट इनका मोटिलिटी यानी मूवमेंट में कोई रोल नहीं होता भैया। पिलाय जो होते हैं, पिलाय जो भी, दे आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। द फिम्ब्रिए आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक, जैसे टूथब्रश ब्रिस्टल लाइक fibers sprouting out of the cells. In some bacteria, they're known to help attach the bacteria to the rock or stream and also to the host tissue. और पिलाई का फंक्शन नहीं दिया, एक बता देता हूँ, एक डीएनए ट्रांसफर, एक बैक्टीरिया जैसे दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर है फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Ribosomes and inclusion bodies. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. They are about 15 nanometer by 20 nanometer in size, and they are made up of 2 subunits, 50s, 30s units, which when present together forms 70s. 50 plus 30 is equal to 70.
इन प्रोकैरियोट्स की बात हो रही है, ठीक है। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस कौन करता है? राइबोसोम। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म्स अ चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। The ribosomes of polysome translate the mRNA into protein। ठीक है, प्रोटीन देखो ये एक mRNA की चेन होती है, ये भी 12th में पढ़ोगे। फिर यहाँ पर आके अपना राइबोसोम जुड़ता है ना, फिर एक जो प्रोसेस होती है पूरी और प्रोटीन बनता है, ठीक है। टीआरएनए का भी रोल होता है। सब रखो, 12th में सारा ज्ञान मिलेगा। Inclusion bodies, reserve material in prokaryotic cells, are stored in the cytoplasm in the form of inclusion bodies. These are not bound by any membrane। पहले आया था राइबोसोम, फिर आया था सेंट्रोसोम, अब आ गया एक और इंक्लूजन बॉडीज। ये भी नॉट बाउंड एनी मेम्ब्रेन, ये भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती हैं, ठीक है। एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। ऐसा समझो फैट के मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे तैर रहे हैं ना, ऐसे याद रखने के लिए ऐसे इमेजिन पानी में ऐसे तैरते रहते हैं छोटे छोटे। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी। फिर से देखो, ये ध्यान से सुनना। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। बस याद रख लो, एक चीज जरूर याद रखना, कौन कौन से मेम्ब्रेन बॉडी होते हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, यहाँ पे आया इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है, ओके। और राइबोसोम किस में पाए जाते थे? कहाँ कौन से ऑर्गेनेल में पाए जाते थे? तो क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते थे अलग से, और सरफेस पे, किसके सरफेस पे? ईआर के सरफेस पे पाए कर जाते थे। अब 8.5 यूकैरियोटिक सेल से स्टार्ट करते हैं। तो द यूकैरियोट्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट्स, ठीक है, इंक्लूड्स ऑल द प्रोटिस्ट एंड प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं, फंगाई भी आ जाते हैं, ठीक है। In eukaryotic cell there is an extensive compartmentalization। इतना बड़ा वर्ड क्या मतलब है भैया इसका? एक्सटेंसिव मतलब कि एकदम, है ना, एक्सटेंसिव बहुत ज़्यादा, कंपार्टमेंटलाइजेशन बहुत ज़्यादा कंपार्टमेंट है सेल में भैया, इतने इतने कंपार्टमेंट बने जैसे किसी ऑफिस में होते हैं। यहाँ पे भैया बॉस बैठा है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, ऑफ द साइटोप्लाज्म। क्यों होता है ऐसा कैसे हो पाता है? पहली बात, ऐसा हो पाता है भैया प्रेजेंस ऑफ द मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेल। सबके पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन है जो कि फिक्स्ड एरिया में अपना काम कर रहे हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। यूकैरियोटिक सेल पोजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप भैया होता है उसके पास। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल हैव अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स। कुछ और भी अच्छी चीज़ें होती हैं इसके पास, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। ये वैसे सेल डिवीजन के ड्यूरेशन में क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। हमेशा वैसे तो पड़ा ही रहता है क्रोमेटिन मटेरियल के फॉर्म में, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका मेशवर्क की तरह पड़ा रहता है। ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्मर पोजेस सेल वॉल्स। प्लांट वाले के पास सेल वॉल होती है भैया, प्लास्टिड होता है उसके पास, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है विच इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल के पास भी वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से एक दो पड़े रहते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स। अब भैया एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, क्यों होता है? क्योंकि ना वो उसका जो सेल डिवीजन है ना, उसमें समझ आएगा, उसका जो फरो बना के उसका जो डिवीजन होता है एंड में, तो उसमें उसका रोल होता है सेंट्रियोल का, विच आर एब्सेंट। और प्लांट में अलग तरीके से होता है साइटोकाइनेसिस। अब बोलोगे साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो साइटोकाइनेसिस वही सेल डिवीजन में समझ आएगा, ठीक है, सेल सेंट्रियोल का रोल। प्लांट में नहीं होता सेंट्रियोल। अब ये देख लो भैया, प्लांट सेल दे रखा है, प्लांट सेल, ठीक है। आर दिख रहा होगा, लाइसोसोम दिख रहा होगा, स्मूथ ईआर दिख रहा होगा, प्लाज्मोडेस्मेटा, वो कनेक्शंस होते हैं अलग सेल, दूसरे सेल से कनेक्शंस होते हैं, ठीक है। गड्ढे होते हैं वहाँ पे, सेल वॉल वगैरह नहीं होती। माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा होगा, वो स्ट्रक्चर देता है, शेप देता है ना। पेरोक्सिसोम दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म दिख रहा होगा, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा होगा, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, मिडल लैमेला, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, गोल्गी apparatus, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक कंसंट्रेटेड सा एरिया होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस
फिर ये देख लो अपना एनिमल सेल है, इसमें तुम्हें दिखेगा गोल्गी अपैरेटस, माइक्रोविलाई से बना दिया। हर सेल पे नहीं होता, हर एनिमल सेल पे नहीं होता। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रियोल, प्रोक्सिसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रियन, रफ ईआर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप और स्मूथ ईआर। रफ ईआर वही होते हैं जिनके ऊपर राइबोसोम चिपके होते हैं, ठीक है। लेट अस नाउ लुक एट द इंडिविजुअल सेल ऑर्गेनेल्स टू अंडरस्टैंड देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। भैया अब शुरू हो जाता है और इम्पोर्टेंट पार्ट, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब भी आया तो एकदम उसकी डिटेल में स्टडी हुई 1950s में। मीनवाइल द केमिकल स्टडीज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, स्पेशली द ह्यूमन रेड ब्लड सेल, enabled the scientists to deduce the possible structure of the plasma membrane. These studies showed that the plasma membrane is mainly composed of lipid and protein. तो plasma membrane हमारी lipid and proteins की बनी रहती है. The major lipids are phospholipids, ठीक है. The phospholipids that are arranged in a bilayer, दो लेयर में phospholipids अरेंज होते हैं कुछ इस तरीके से, देखेंगे हम, ठीक है. एक लेयर मतलब इधर होती है, एक लेयर उधर होती है, दो लेयर, ठीक है. ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड. देखो इस तरीके से कुछ डिपेंड करते हैं इसको पोलर हेड कहते हैं ये वाले पार्ट पोर्शन को, और बचे हुए पोर्शन को टेल कहते हैं, ठीक है. विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड एंड द हाइड्रोफोबिक, और ट्रेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, यानी कि पानी से डरती है, और जो पोलर हेड होता है हाइड्रोफिलिक होता है, पानी से बड़ा प्यार करता है. तो इस वजह से ये कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है. देखो नीचे डायग्राम है तो मैं क्यों बना रहा हूँ पागलों की तरह. अरे देखो जो पोलर हेड है वो हाइड्रोफिलिक है, तो बाहर के एरिया में रहता है ना. और ये जो है ये भी देखो टेल हाइड्रोफिलिक है, तो अंदर ऐसे एक दूसरे को अंदर रहती है ना वो, तो डायरेक्टली वो इन्वायरमेंट से कॉन्टैक्ट में नहीं आती, ठीक. दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी होती है भैया, वो इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस पानी वाला इन्वायरमेंट. In addition to the phospholipid membrane, it also contains cholesterol भी होता है, cholesterol भी होता है membrane में. Later, the biochemical investigation clearly revealed that the cell membranes also possess the proteins or carbohydrates. The ratio of the protein and lipid vary considerably in different cell types. In human beings, the membrane of the cell erythrocyte, यानी कि RBCs, has approximately 52% protein, 40% लिपिड्स. इसमें दो चीज़ याद रखना, एक तो ये कि 52 प्लस 52 प्लस 40 100 नहीं होता है, हाँ नहीं होता है. 8% कुछ और भी इसकी बात नहीं कर रही है एनसीईआरटी. तो तुम्हें क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए 48% लिपिड लिख के दे देगा, ठीक है. और तुम याद करके कहोगे यार प्रोटीन ज़्यादा होता था लिपिड कम होता था, यही है आंसर. नहीं वो नहीं है आंसर. 52 प्रोटीन है और 40 ही लिपिड है, 8 का कुछ घपला है पता नहीं. डिपेंडिंग अपॉन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, आसानी से जिसको निकाल सकें मेम्ब्रेन से, तो उस हिसाब से मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड ऑन इंटीग्रल एंड पेरिफेरल. इंटीग्रल और पेरिफेरल मतलब बाहर, इंटीग्रल मतलब अंदर. पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन, ठीक है. पूरा उनको एकदम है जकड़ के दबा के. ये देखो डायग्राम देख लो भैया ना, पेरिफेरल प्रोटीन दिख रहा है, इंटीग्रल भी दिख रहा है एकदम मेम्ब्रेन के अंदर धंसा हुआ है ना, शुगर दिख रही है चिपकी हुई उस पर, कोलेस्ट्रॉल का भी देखो दिख रहा होगा मॉलिक्यूल. अरे स्क्रॉल हो जा भाई मेरे, थैंक यू. An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model. ठीक है. According to this, the quasi-fluid nature of the lipid enables the lateral movement of the protein within the overall bilayer. अब यार इसको ना लाइन एकदम 10-15 बार एकदम रीड कर लो, क्योंकि यहाँ पे घुमाया बहुत जा सकता है. घुमाना मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू दिस द quasi-fluid nature of the lipid enables, ठीक है, लेटरल मूवमेंट. अब लेटरल याद रखना वर्ड, इससे साल घपला हो सकता है सर्टेन रीजन के टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है. इनेबल्स द लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन, याद रखना थोड़ा सा, विथ इन द ओवरऑल बाइलेयर. अब यहाँ पे भी घपला हो सकता है ओवरऑल बाइलेयर पे, ठीक है. तो याद रखना अच्छे से, लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विथ इन द बाइलेयर, किस वजह से, क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ द लिपिड मेम्ब्रेन, ठीक. विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज, और इसे फ्लूइडिटी कहते हैं.
The fluid nature of the membrane is not is also important from the point of view function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, and the cell division, etc. One of the most important function of the plasma membrane is the transport of the molecules across it. The membrane is selectively permeable to some molecules present on the either side. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. This is called a passive transport. Neural solutes ठीक है, sorry. Neutral solutes may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient. ठीक है, जहाँ ज़्यादा वहाँ कम, जहाँ कम, जहाँ कम, तो कम ज़्यादा हो जाता है इक्वल. ठीक है, मतलब ज़्यादा से कम मूवमेंट होता है. From the higher concentration to the lower concentration, water may also move across the membrane from the higher to the lower concentration. Movement of the water by diffusion is called osmosis. बस water move करता है तो उसे osmosis कहते हैं, नहीं तो बाकी चीज़ों को diffusion कह देते हैं. ठीक है, as the polar molecules cannot pass through the non-polar bilipid layer, they require a carrier protein. ये जो पोलर हैं, जो चार्ज्ड हैं, ठीक है, उनको कैरियर प्रोटीन की जरूरत होती है. ठीक है, टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. Few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है भैया, फ्रॉम लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं. ऐसा क्यों करते हैं? पर्पस है भैया, कुछ समझोगे, पढ़ोगे, समझोगे. ठीक है, सच अ ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस. अब कोई चीज़ भैया, कोई अगर सेल उसमें एनर्जी डाल रहा है तो कुछ फायदा है तभी डाल रहा है. In which ATP is utilized. भाई ATP यूटिलाइज होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, एंड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप. ठीक है, याद रखो. सेल वॉल. As you may recall, a non-living rigid structure called the cell walls forms an outer covering for the plasma membrane of the fungi and plant. Cell wall not only gives a shape to the cell and protect the cell from the mechanical damage and infection, it also helps in cell-to-cell interaction and provide the barrier for the undesirable macromolecules. Algae have a cell wall made up of cellulose, galactans, mannose, calcium carbonate. ठीक है, याद रखना. एल्गी की जो सेल वॉल होती है, एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलोज, गैलेक्टन्स, मैननस एंड मिनरल्स लाइक CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, विच इन अदर प्लांट्स इट कंसिस्ट ऑफ. प्लांट्स की बात हो रही है, अदर प्लांट्स में सेलुलोज होता है, उसमें भी था भैया, लेकिन हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, प्रोटीन होता है. तो एल्गी में क्या है? सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मैनस एंड कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, ठीक है, ठीक है. बट प्लांट्स में क्या होता है? सेलुलोज होता है, लेकिन हेमी सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन प्रोटीन. द सेल वॉल ऑफ द यंग प्लांट को कहते हैं भैया, जो नई नई वॉल बनी होती है उसे प्राइमरी वॉल कहते हैं. वो ग्रो कर सकती है. ठीक है, एंड ग्रेजुअली वो गायब हो जाती है और सेल मैच्योर हो जाता है और एक सेकेंडरी वॉल बन जाती है. वही सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाती है या मैच्योर हो जाती है भैया, फॉर्म्ड ऑन इनर साइड टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल. The middle lamella is a layer mainly of calcium pectate, याद रखना, which holds or glues the different neighboring cells together. The cell wall and the middle lamella may be traversed by plasmodesmata, which connects the cytoplasm of the neighboring cells. ठीक. Endomembrane system. While each of the membranous organelles is distinct in of its structure and function, many of these are considered together as a intermembranous system because the function are coordinated. ठीक है, थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा काम, जैसे फैक्ट्री में होता है ना, थोड़ा काम गाड़ियों के गेट उसने लगाए, डिग्गी उसने लगा दी, है ना, हेडलाइट्स किसी और ने लगाई, पेंटिंग एंड में किसी और ने की, राइट. तो वैसे ही सेल में भी एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम होता है, ऐसे ही नहीं कुछ भी हो रहा है. ठीक है, इतना भाई कंपार्टमेंटलाइजेशन है तो काम भी तो कायदे से होगा ना. तो द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एक पर्टिकुलर सिस्टम है, जैसे कि कार की फैक्ट्री, वैसे ही इसमें भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है. उसमें कौन कौन आता है भैया, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. पता नहीं क्यों मतलब बहुत बार क्वेश्चन आया है. ER आता है सबसे पहले, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम आता है, वैक्यूल आता है.
The endomembrane system include the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, and the vacuoles. Since the function of the mitochondria, chloroplast, and peroxisome are not coordinated with the above component, these are not considered in the endomembrane system. ER. Electron microscope studies of the eukaryotic cell reveal the presence of a network of the reticulum of a tiny tubular structure scattered in the cytoplasm that is called the endoplasmic reticulum. Hence, ER divides the इंट्रासेलुलर सेल के अंदर का जो स्पेस है उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है. एक बोल देता है ल्यूमिनल या फिर इनसाइड ईआर, और एक को बोल देता है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल यानी कि साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट हो गया. ठीक है. द ईआर ऑफन शोज राइबोसोम अटैच टू द आउटसाइड सरफेस. ईआर ऑफन शोज द राइबोसोम अटैच टू द आउटसाइड सरफेस. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम bearing the rhizome on their surface are called the rough ER, and in the absence of ribosome they appear smooth and called the SER. RER is frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. ठीक है. ये वर्ड थोड़ा समझने वाला है. दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस. तो जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वहीं से ये निकल जाते हैं ना. ये निकल गए. ठीक है. समझ पा रहे हो? मतलब ये न्यूक्लियस है और ये ER है. समझ लेना खुद ही. द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड 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 लिप लिप. कौन है? SER. ठीक है. मेजर साइट है किसका? सिंथेसिस का. किसकी? लिपिड की. सिंपल. In animal cells, lipid-like steroidal hormones are synthesized in ER. ठीक है. steroidal hormones भी भैया SER synthesize करता है. दो फंक्शन SER के, एक है लिपिड से रिलेटेड. ठीक है. ठीक है. लिपिड बनाता है. ठीक है. और क्या बनाता है? ठीक है. स्टेरॉयडल हार्मोन बनाता है. ठीक है. आ गया. ठीक है. कंटिन्यू. गोल्गी अपैरेटस पे आ जाए. कमीलियो गोल्गी, इन्होंने 1898 में सबसे पहले ऑब्जर्व्ड डेंसली स्ट्रेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के आसपास देखा गई. These were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat disc-like sac-like. ये वर्ड यार, ये वर्ड, इस वर्ड को घुसा लो दिमाग में. क्या वर्ड है? सिस्टर नहीं, सिस्टर नहीं. ठीक है. इसको क्यों बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली? माइटोकॉन्ड्रिया में एक वर्ड आएगा बहुत सिमिलर होता है, थोड़ा ध्यान देना. ठीक है. सिस्टर नहीं. ऑफ क्या होता है भैया? 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है. एंड दीज आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर. दिख रहा होगा तुम्हें. एंड वेरियस नंबर ऑफ सिस्टर्ने आर प्रेजेंट इन द गोल्गी कॉम्प्लेक्स. द गोल्गी सिस्टर्ने आर कंस्ट्रिक्टली अरेंज. मतलब जैसे कंस्ट्रिक्टली मतलब इन सबका सेंटर एक पॉइंट पे होता है ना, ऐसे ऐसे अरेंज होते हैं. एंड नियर द न्यूक्लियस विच डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स. एक होता है भैया, दो फेस होते हैं इसके. इसमें भी देख लो ना, एक कॉन्वेक्स फेस है. कलर चेंज करते हैं, काला ले लें. नहीं, नीला नीला नीला. एक कॉन्वेक्स इधर. ठीक है. ये कॉनकेव हो गया. दो फेज होते हैं इसके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स. ठीक है. तो अच्छा भैया, तो क्या अंतर है दोनों में? एक बस अंतर कुछ नहीं है. एक न्यूक्लियस को फेस करता है, एक न्यूक्लियस के अपोजिट फेस करेगा ना ऑब्वियसली. तो जो न्यूक्लियस को फेस करता है वो कौन सा है? ठीक है. उसको कॉन्वेक्स कहते हैं. द फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं. क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग फेस. और द कॉनकेव फेस और द मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं. एक्चुअली होता क्या, मैं तुम लोगों को अगर थोड़ा समझाऊं तो ध्यान से देखना. ये है अपना एक वेसाइकल जो SER से, सॉरी RER से आ रहा होगा. ER से बेसिकली आ रहा है. ठीक है. ER एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है. ठीक है. ER से आ रहा है और ये वेसाइकल आते 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 ये देखो यहाँ पे चिपका हुआ है. ये दिख रहा है तुमको? और ये फ्यूज हो गया इसमें. अब इसके अंदर ना प्रोटीन या फिर DNA कुछ होगा. प्रोटीन होता है वैसे, प्रोटीन होने के चांस है. फिर ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसकी जो पैकेजिंग जो भी करता है, ये तोड़ मड़ोड़ सिंथेसिस करेगा और फिर ये इसको यहाँ से वेसाइकल के फॉर्म में ही इसके अंदर छोड़ के निकाल देगा. अब ये मान लो सेल मेम्ब्रेन से जाके जुड़ गया. ठीक है. ऐसे जाके जुड़ जाएगा. फिर ये यहाँ से डिफ्यूज होकर बाहर आ जाएगा अगर उसको बाहर जाना हुआ तो.
तो बेसिकली मिलजुल के काम करते हैं। और ये यार मैं इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, रीडिंग वीडियो, बट थोड़ा जान गए कि लाइक फॉर्मिंग फेज क्यों कहते हैं उसको, और उसे मैच्योरिंग फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वहीं से मैच्योर होके निकलता है वो, ठीक है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स का जो फंक्शन है वो हो जाता है उस पर, जो भी उसमें तोड़ फोड़ करनी है, उसको जो भी सिंथेसाइज करना है ना, वो करके फिर वो मैच्योरिंग फेज से बाहर आता है। तो ऑब्वियसली यार जो सिस फेज कॉन्वेक्स फेज जो है, ठीक है, वो न्यूक्लियस की तरफ ही तो फेस करेगा, है ना। और जो कॉनकेव ट्रांस फेस है वो सेल के मेम्ब्रेन की तरफ फेस करेगा। सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट लाइन है। द गोल्गी apparatus principally perform the function of the packaging of the material to be delivered either the intra या तो सेल के अंदर भैया, या तो secreted outside the cell. Materials to be packaged in the form of vesicles from forms the क्या ER fuse with the cis phase, देखो वही लगा है ना, of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase. This explains why the Golgi apparatus remains in close association with the ER, and the number of the proteins synthesized by the ribosomes of the on the ER are modified in the cisternae of Golgi complex. Important, very important line है ये, तो याद रखो, a number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of Golgi apparatus, ठीक, बिफोर दे आर रिलीज्ड फाइनल यूज के लिए, राइट। मतलब प्रोटीन एक बार बना दिया उसने, किसने, राइबोसोम ने सिंथेसाइज कर दिया, लेकिन उसका थोड़ा सा जो फंक्शन है, उस शेप चेंज करना है, उसमें कोई तोड़ मड़ोड़ करना है, वो काम अपना गोल्गी कॉम्प्लेक्स करके उस फाइनल पैकेजिंग करके उसको जहाँ भी यूज करना है वहाँ के लिए भेज देगा, वेसाइकल के अंदर डाल के, ठीक है। रिलीज फ्रॉम इस ट्रांसफेस, गोल्गी apparatus इज अ इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, याद रख लेना, ठीक। लाइसोसोम्स, ओके, लाइसोसोम्स, ठीक है। These are the membrane bond vesicular structures formed by the process of packaging. ये भैया गोल्गी apparatus ही बनाता है इनको, ठीक है। The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic, तोड़ने वाली है ना, lytic enzymes, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस जैसे कि लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेसिस। लिपिड को तोड़ेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट, और यार सब तो तोड़ दिया, है ना। ऑप्टिकली एक्टिव एट एसिडिक पीएच। तो दीज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड तक, ठीक है, न्यूक्लियस भी होगा। वैक्यूल्स, the vacuole is the membrane bond space found in the cytoplasm. It contains water, sap, excretory products, and other materials not useful for the cell. The vacuole is bound by the single membrane called as tonoplast. In plant cell, the vacuole can occupy 90% of the volume of the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other materials against the concentration gradient into the vacuole. Hence, their concentration is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. Storage होता है basically ना. तो in amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation. कौन? अमीबा में क्या? Contractile vacuole क्या करता है? Osmoregulation and excretion, ठीक है। In many cells, as in protists, the food vacuole are formed by the engulfing the food particles. अरे वही कुछ नहीं, फूड पार्टिकल आ गया तो उस पर्टिकुलर एरिया पे उसको क्या देते हैं, फूड वैक्यूल है वो, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन unless specifically stained are not easily visible under the microscope. The number of mitochondria per cell is variable depending upon the physiological activity of the cell. मतलब कोई एथलीट होगा उसमें ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। In terms of the shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. Average is 0.5 micrometer and the length is 1 to 4.1 micrometer. Each mitochondria is a double membrane bond structure. दो membrane होती है भैया इसकी, ठीक है।
ये देख लो। अच्छा, वो जो सिस्टर्नी को मैं क्या कह रहा था, किससे मत कंफ्यूज करना, इससे, क्रिस्टा से। कंफ्यूज कराता है वो एग्जाम में, तो याद रखना। ठीक है, CIS दिखे तो वो गोल्गी वाला है, और क्रिस दिखे तो वो माइटोकॉन्ड्रिया वाला है। ठीक है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन स्पेस, जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में द मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन बॉन्ड होती है, एक आउटर होती है, एक इनर होती है, डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू द टू एक्वस कंपार्टमेंट। एक जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, और एक अंदर एकदम है ना, आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट बन गए। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनस, यानी कि एकदम इक्वली फैला हुआ सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। द आउटर मेम्ब्रेन forms the continuous limiting boundary of the organelle. In the inner membrane forms a number of enfoldings called crista singular cristae। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, अलग है ये, वो अलग था। Towards the matrix, cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzyme associated with the mitochondrial functions. Mitochondria are the sites of aerobic respiration, the process cellular energy in the form of ATP, है ना, मतलब they produce cellular energy, सेल के यूज होने वाली एनर्जी in the form of ATP. Hence they are called the powerhouse of the cell। बचपन से रटी हुई लाइन। The matrix also processes सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल। तो इसके पास सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल तक होता है, बताओ। और फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, और राइबोसोम्स 70s। एंड द कंपार्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। तो यार ये सुनने में थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कभी तो प्रोकैरियोटिक सेल था। हाँ, इस पर एक थ्योरी है, पढ़ सकते हो उसके बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन, डिवीजन भी कर सकता है, मतलब ऐसा लगता है कि अपने आप में एक ऑर्गेनिज्म है, जबकि ये ऑर्गेनेल है। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। ठीक है, यूग्लिनॉइड्स में भी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, दे आर इजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज। They bear some specific pigments, thus imparting a specific color to the plants. Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast, leucoplast. The chloroplast contains chlorophyll and carotenoid pigments, which are responsible for the trapping of light energy essential for the photosynthesis. In a chromoplast, fat-soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and other are present. किसमें? carotenoid pigment। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो फैट soluble carotenoid pigments है, कौन से हैं? carotene, xanthophylls। This gives the part of the cell a yellow, orange, red color. The leucoplast जो होते हैं भैया, ये कलरलेस होते हैं, वेरिड शेप्स एंड साइजेस के होते हैं। ये तो भाई स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, क्या स्टोरेज भैया, क्या स्टोरेज करते हैं? अमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इलाइयो जो भी बोलेंगे, इलाइयोप्लास्ट स्टोर ऑयल्स। देखो थोड़ा सिमिलर सा OI दिख रहा है, OI ऑयल्स, फैट्स, है ना। और ये तो याद ही कर लो। अमाइलोप्लास्ट में, अमाइलोप्लास्ट जो होता है, पोटैटो में एग्जांपल है उसका, इस प्लांट में पाया जाता है। उसमें जो स्टार्च है वो अमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टोर्ड रहता है। ठीक है, एंड एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन स्टोर करता है। ठीक है, तो प्लास्टिड बेसिकली 3 टाइप के थे, क्लोरोप्लास्ट, फिर अपने आए क्रोमोप्लास्ट, फिर आए ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मैंने बताया क्लोरोफिल होता है अपना, है ना, कार्टेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, अपना ट्रैपिंग ऑफ लाइट, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, फिर क्रोमोप्लास्ट की बात हुई तो उसमें पता चला कि यार फैट सोल्यूबल कार्टेनॉइड पिगमेंट होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, xanthophylls, ये अपना कलर वलर देते हैं प्लांट को। ठीक है, फिर बात हुई ल्यूकोप्लास्ट की तो पता चला यार स्टोरेज वाला फंक्शन है इनका, और इसमें 3 टाइप्स बताया मैंने तुम्हें, अमाइलोप्लास्ट, इलाइनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट स्टार्च स्टोर करता है, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन, और इलाइनोप्लास्ट या फिर इलाइयोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन कलर्ड, है ना, ऑफ द ग्रीन प्लांट आर फाउंड इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। मेसोफिल में पाए जाते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, दे आर लेंस शेप्ड,
ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और इवन रिबन लाइक तक शेप मिल जाते हैं. ऑर्गेनेल हैविंग अ वेरिएबल लेंथ, ये विथ ये 2-4 माइक्रोमीटर और लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर. देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 पर सेल, जैसे कि क्लाइमेडोमोनास में और ग्रीन एल्गी में 20 to 40 होते हैं भैया मीजोफिल सेल में. ठीक है, ग्रीन एल्गी सॉरी मीजोफिल सेल में 20 to 40 होते हैं. ग्रीन एल्गी मतलब क्लाइमेडोमोनास इनमें 1 पर सेल होता है. ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन, ये भी भैया डबल मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह. ऑफ द 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन आर रिलेटिवली लेस परमिएबल, अंदर वाली लेस परमिएबल होती है. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा. ये जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है पूरी, इसको स्ट्रोमा कहते हैं. ठीक है, ये अंदर इसके जो भी है स्ट्रोमा है. ठीक है, जो जहाँ पे भी the number of organized flattened membranous structures SACs called the thylakoids are present in the stroma के अंदर. The thylakoids are arranged in stacks like piles of coins called grana, singular granum, or the integral thylakoids. Granum, integral thylakoids. In addition, there are flat membranous tubules called stroma lamella connecting the thylakoids of the different grana. ठीक है, the membrane of thylakoid includes a space called a lumen. ठीक है, thylakoid के अंदर की स्पेस को lumen कहते हैं. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrate and fats, proteins. ठीक है, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट contains enzyme required for the synthesis of carbohydrates and protein. It also contains small double-stranded circular DNA molecules. क्या? It also contains small double-stranded circular DNA molecule and ribosomes. Chlorophyll pigments are present in the thylakoid. ठीक है, the ribosomes of the chloroplast are 70S and the cytoplasmic ribosomes 80S होते हैं. ठीक है, इनके पास भी है ribosomes. Ribosomes are the granular structure first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade in 1953. They are composed of ribonucleic acid. ठीक है, they are composed of ribonucleic acid या फिर RNA and proteins and are not surrounded by any membrane. The eukaryotic ribosomes are 80S while the prokaryotic ribosome are 70S. Each ribosome have 2 subunits, larger subunit and the smaller subunit. The 2 subunits are of 80S ribosomes are 60 and 40 while that of 70S ribosomes are 50 and 30. The S मतलब होता है Swedsburg's unit, stands for the sedimentation coefficient. It is indirectly a measure of a density and size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of 2 subunits. Cytoskeleton, an elaborate network of filamentous proteinaceous structure consisting of the microtubules, microfilaments, intermediate filaments present in the cytoplasm is collectively referred as cytoskeleton. क्या क्या? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. ठीक है, द साइटोस्केलेटन इन अ सेल आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोडिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप. ये देख लो डायग्राम भैया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स. ठीक है, 2 डबलेट हैं, ऐसे 9 होंगे शायद. इंटर डबलेट ब्रिज है, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल है, रेडियल स्पोक्स. ठीक है, सेंट्रल शीट, सीलिया एंड फ्लैजेला, फिर न्यूक्लियस. Cilia and flagella. Cilia, singular, cilium. Flagella, singular, flagellum, are the hair-like outgrowth of the cell membrane. Cilia are the small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. Flagella are comparatively longer and responsible for the cell movement. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. The electron microscope study of the cilium and the flagella show that they are covered with the plasma membrane. Their core, called exoneme, possess a number of microtubules running parallel to the long axis. The exoneme usually has a 9 doublet of the radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of exonemal microtubule is referred to as 9+2 array. The central tubules are connected by the bridges called enclosed by the central sheet, which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by radial spokes. ठीक है, वो कनेक्ट करते हैं. Thus there are 9 radial spokes.
क्योंकि 9 होते हैं डबलेट। पेरिफेरल डबलेट्स आर ऑल्सो इन कनेक्टेड बाय द लिंकर्स, ठीक है। बोथ द सीलियम, मतलब वो डबलेट्स एक दूसरे से लिंकर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बोथ द सीलियम एंड द फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रियोल से इमर्ज होते हैं भैया सीलियम फ्लैजिला, सीलियम एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम द सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। सेंट्रियोल जैसा स्ट्रक्चर होता है बेसल। Centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures which are called centrioles. ये भैया एक centriole है, ठीक है, और पूरे को centrosome कहते हैं. They are surrounded by the amorphous pericentriolar material. Both the centriole in the centrosome lie perpendicular to each other, जैसे मैंने बनाया था. Other in to each other, in which each has an organization like cartwheel, ठीक है, कार्टव्हील जैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibril of tubulin protein, याद रखना भैया, ठीक है. They are made up of 9 evenly spaced, equal space of peripheral fibrils of tubulin protein. Each of the peripheral fibril is a triplet. जैसे उसमें डबलेट थी ना peripheral, इसमें triplet होता है, ठीक है. The adjacent triplets are linked, जैसे उसमें लिंकर से linked थी. The central part of the proximal region of the centriole is also proteinaceous. इसका प्रोटीनेशियस होता है और इसे हब कहते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ट्यूब्यूल्स ऑफ द पेरिफेरल ट्रिपलेट से. ये भी कनेक्ट होता है किससे? रेडियल स्पोक से कनेक्ट होता है भैया, मेड अप ऑफ प्रोटीन, ठीक है. The centrioles form the basal body of the cilia or the flagella and the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during the cell division in animal cells. Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early in 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by the Fleming. Fleming ने chromatin नाम दिया था और डिस्कवर न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है. The interphase nucleus of the cell, which is not dividing, has a highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix and one or more spherical bodied nucleoli, ठीक है, या फिर nucleolus उसके सेंटर में होता है. Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with the space between 10 to 15, दो थे ना, मतलब जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, वो दो मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर होता है, उनके बीच में स्पेस होता है 10 to 50 नैनोमीटर का, और उसे कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस. वो फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म. एनवेलप का ये काम ही होता है. The outer membrane usually remains continuous with the ER, बताया था कैसे, and also bears ribosomes on it, ठीक है. At the number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores which are formed by the fusion of the two membranes. अरे यार, दो मेम्ब्रेन है तो जहां फ्यूज होंगी वहीं पर तो पोर बनेगा, ये बन गया पोर, ठीक है. The nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and the protein molecule take place in both the direction between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variation in the number of nuclei are also frequently observed. जैसे कि अपना मसल सेल, ठीक है, मसल फाइबर, मसल सेल, कुछ भी कहो. Can you recollect the name of the organism that have more than one nucleus per cell? Some of the mature cells lack nucleus. Example, एरिथ्रोसाइट होता है ना, उसके बाद न्यूक्लियस नहीं होता भैया, उसको जगह चाहिए ना ऑक्सीजन रखने के लिए, तो नहीं झमेला लेता है यार न्यूक्लियस वगैरह का, ठीक है, उसकी मर्जी, ठीक है. तो what would you consider these cells living? तुम इनको लिविंग बोलोगे? हाँ, लिविंग तो बोल सकते हैं. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स पता नहीं यार, क्वेश्चन मार्क है, मुझे भी नहीं पता. मतलब अब उनके पास न्यूक्लियस नहीं है, बट दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड दे आर कंटेन्ड इन अ सेल बॉन्ड स्ट्रक्चर. तो लिविंग की डेफिनेशन ही यही है कि ये दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं भैया, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए और एक सेल अपैरेटस होना चाहिए, तो वो दोनों चीज़ें तो हैं उसके पास. ऐसा तो नहीं है कि लिविंग होने के लिए तुम्हारे पास न्यूक्लियस होना ज़रूरी है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स ऑफ द न्यूक्लियर प्लाज्मा, और कुछ आंसर है तो भैया माफ करना, मैं अपने दिमाग से कह रहा था, ठीक है. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियर प्लाज्म कंटेन्स न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन. द न्यूक्लियोलाई are the spherical structure present in the nuclear plasm. The content of the nucleolus is continuous with the rest of the nuclear plasm as it is not a membrane bond structure. It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nuclei are present in the cell actively carrying out photosynthesis.
You may recall that interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein fibers called chromatin. But during stages of cell division, cell show structured chromosomes in place of the nucleus. The chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. Some non-histone proteins are also RNA and also RNA. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes, 23 pairs जो होते हैं, ठीक है. You will study the detail of the DNA packaging in the form of chromosome in class 12th. Every chromosome, visible only in the dividing cells, essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structure called kinetochores are present. Centromere holds the two chromatid together. Chromatid को कौन पकड़ता है? centromere, ठीक है. Based on the position of the centromere, the chromosomes are classified into 4 types. The metacentric chromosome, जिसके पास मिडल में होता है centromere, forming the 2 equal arms बनते हैं वहाँ पे. Submetacentric थोड़ा सा खिसक जाएगा भैया सेंटर से, ठीक है. Has a centromere slightly away from the middle of the chromosome, resulting into the one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end. अभी भी end तक नहीं है, ठीक है, close to its end है, forming an extremely short and one very long arm. Whereas the टीलोसेंट्रिक में एकदम भैया टर्मिनल पे जाके बैठा है ना, टीलो टर्मिनल, ठीक. Sometimes a few chromosomes have a non-staining secondary constriction at a constant location. This gives a appearance of a small fragment called satellite. फिर से sometimes a few chromosomes have a non-staining, याद रखना भैया, स्टेन नहीं हो पाता, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है. जैसे कि एक सेंट्रोमियर रहा था ना, तो इसे प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कह सकते हो. बट एक और किसी में होता है, देखो यहाँ पर, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर नहीं है बट वहाँ पे दबका हुआ है ना वहाँ पे, तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कह देते हैं भैया, वो अलग से है ना लिखना हुआ. तो इसको दिस गिव्स अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, तो ऐसा लगता है छोटा सा एक फ्रेगमेंट हो गया है क्रोमोसोम का, तो उसे सैटेलाइट कह देते हैं. माइक्रोबॉडीज क्या होती है? मेनी मेम्ब्रेन बॉन्ड होते हैं, ये पहली बात. माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल. क्योंकि ये वीडियो 1 घंटे से ऊपर का हो गया है, तो यहीं पर एंड करते हैं. समरी इस वीडियो में मैं नहीं कर रहा, खुद से जाके पढ़ लो. गुड नाइट, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाय.